وہ بھارتی ہو سکتے ہیں جو مقامی بن کر ہوٹل میں رکے ہوئے ہوں۔ وہ تدبیر ضروری تھی، وہ اسی ہوٹل میں تھے تو ارجن کے قتل کے باوجود ان کے لیے ہوٹل بدلنا آسان نہیں تھا۔ نئے ہوٹل میں وہ غیر متوقع مسائل اور مشکلات کا شکار ہو سکتے تھے۔ ارجن کے ہوٹل میں انہیں چند روز قیام کا تجربہ اور تسلسل حاصل تھا جس سے وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہاں کافی وقت گزار لیا۔ میرے دونوں آدمی یہاں ہیں، ان سے کوئی شکایت ہوئی تو انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اول خان واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ اول خان کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ نک سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کرنل تاور کے روپ کو بھرپور انداز میں نبھانے کے لیے گھر چھوڑ کر اسٹیشن 4 منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ نک سے بات بگڑ جانے کے بعد اس عارضی ہجرت کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف وہ اور ٹام مجھے کرنل تاور کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے خلاف خود میدان میں اتر آئیں گے۔ ان کے دوسرے ہمدردوں اور ساتھیوں کے لیے کرنل تاور ایک نام ہو سکتا تھا، پہچان نہیں بن سکتا تھا۔ طویل مذاکرات نے شاید سب کو تھکا دیا تھا۔ ویرا اور غزالہ اول خان کے دونوں آدمیوں کو بلا کر گھر کے کام کاج سمجھانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ دونوں اپنی صورتوں سے نیک اور شریف نظر آ رہے تھے۔ یہ انتخاب ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ان میں سے کون گھر کے کام کرے گا اور کون رات کی چوکیداری کا کام انجام دے گا۔ میں فرصت سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو میرے ذہن میں سلطان شاہ کا سوال چھپنے لگا۔ سب کچھ صاف ہونے کے بعد معاملات بہت آگے بڑھ گئے تھے، لیکن سوبراج کا نام کہیں ابھر کر سامنے نہیں آ سکا تھا۔ میں نے کوبرا کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ نک نے دوستانہ فضا میں باتیں کرنے کے دوران صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک عزت دار، مقامی اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ سوبراج ان تینوں تعریفوں پر پورا اترتا تھا۔ اس کے عزت اور سماجی رتبے کی گواہی جلال نے دی تھی۔ وہ اسلام آباد سے چیک کیے بغیر سوبراج کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا ذہن اس راہ پر چل نکلا۔ میں جتنا سوچ رہا تھا میرا یہ خیال پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ کوبرا کے پردے میں سوبراج ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس معاملے میں جلال کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان اپنے کسی آدمی کو ارجن والے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کا وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن راستے میں اس کام کی نزاکتوں پر غور کرنے کے بعد اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اس معاملے کی کوئی کڑی اس وقت تک گم تھی، ورنہ کہانی کے سامنے آنے والے بکھرے بکھرے کرداروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ وہ معاملات اتنے الجھے ہوئے تھے کہ کام کی ذمہ داری کسی ماتحت پر ڈالنے کی بجائے اسے خود آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ ہوٹل کی طرف بھیجا جانے والا کارندہ ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہوٹل کی پارکنگ سے نکل گیا تھا، مگر انہی اطراف میں منڈلاتا رہا۔ اس نے اپنی تحویل میں موجود مشتبہ اشیاء اور ہتھیار وغیرہ گاڑی میں چھپائے اور گاڑی ہوٹل سے دور پارک کر کے دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہوٹل کے قرب و جوار میں رہ کر اندر آنے جانے والے پولیس افسروں اور صحافیوں وغیرہ سے جستہ معلومات حاصل کر کے اگلے 1.5 گھنٹے میں اول خان کو اس واردات کے بارے میں قدر تفصیلی رپورٹ فراہم کرتی جو حقائق سے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ ہوٹل کے آپریٹر کے ذریعے ارجن کمار کے لیے کسی کرنل شاہ کی فون کال آئی جو لمحہ بھر میں کٹ گئی۔ نامعلوم کرنل نے دوبارہ فون کر کے ارجن سے مختصر سی گفتگو کی، جس کے نتیجے میں ارجن کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے اپنے اردلی کو طلب کر کے فریش جوس کے 2 گلاس پی ڈالے۔ اردلی کا کہنا تھا کہ اس وقت ارجن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ دوسرا گلاس خالی کر کے اس نے اردلی کے جانے سے پہلے اپنے ڈائریکٹ فون پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ اردلی نے واپس آ کر اپنی تشویش دور کرنے کے لیے ارجن کے کمرے میں جھانکا تو اپنی کرسی پر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ اس نے دروازے پر اردلی کے چہرے کی جھلک دیکھتے ہی پھٹی پھٹی آواز میں اسے جھاڑ کر بھگا دیا۔ ارجن کمار صحت مند، خوش مزاج اور باحوصلہ شخص تھا۔ اردلی اس کی طرف سے فکر مند ہو گیا۔ وہ ارجن کی بگڑتی ہوئی حالت بتانے کے لیے اسی فلور پر واقع چیف اکاؤنٹنٹ کے دفتر کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بوکھلا کر ارجن کے دفتر کی طرف آ رہے تھے تو ایک خوشپوش اور مہذب آدمی ارجن کے دفتر سے نکلا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ دربان نے بتایا کوئی شخص چند لمحوں پہلے خالی ہاتھ ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور سیدھا ارجن کے دفتر میں گھستا چلا گیا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد وہ دفتر سے نکل کر ہوٹل سے بھی فرار ہو گیا۔ اتنی اجلت میں آمد و رفت کی بنا پر دربان نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ واپسی پر بھی خالی ہاتھ تھا اور اس کے بشرے پر خوف یا گھبراہٹ کے بجائے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ گیٹ سے نکلا اور چیف اکاؤنٹنٹ دروازہ کھول کر ارجن کے دفتر میں داخل ہوا تو ارجن اپنی کرسی پر بے جان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر جھول گئے تھے۔ پیشانی کے وسط میں موجود سرخ رنگ کا خونی دائرہ چیخ چیخ کر فائر کا اعلان کر رہا تھا۔ دونوں نے گھبرا کر ارجن کو دیکھا اور وہ بے جان بت کی طرح ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔
दहशत से इन दोनों ने हज़ियानी आवाज़ों में चीखना शुरू कर दिया। होटल में सनसनीखेज कोहराम बरपा हो गया था। दरबान किसी की हदायत के बगैर उजलत पसंद अजनबी की तलाश में बाहर निकला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो लम्हों ही लम्हों में फिजा में तहलील हो गया हो। पुलिस आई और होटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो शहर का मशहूर होटल था। वहाँ अहम सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात मुकीम थीं। इनको ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता था। होटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेशतर अरकान वो वहशत असर खबर सुनते ही होटल पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की सहूलत की खातिर अपनी जाती काविशों से 3 बजे तक होटल के दरवाजे खुलवा दिए। इस दौरान में पुलिस अपनी इब्तदाई और सरसरी तफ्तीश का पहला मरहला तेजी से मुकम्मल कर चुकी थी। इस वक्त तक होटल में मुकीम मेहमानों के सिवा किसी को अंदर जाने या अंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अव्वल खान का आदमी भी सदर दरवाजे के बाहर रुका हुआ था। अव्वल खान को अंदाजा था कि होटल में मुजरिमों के किसी साथी से उसका टकराव हो भी गया तो खुली महाज अराई की नौबत नहीं आ सकेगी। होटल के अंदर और बाहर मुसल्लह पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मालिकान ने अपने असर और सूख के बिना पर कुछ प्राइवेट कार्स पे बुला लिए थे ताकि इनके मेहमानों का खोया हुआ तहफ्फुज का एहसास बहाल हो सके। उसने किसी खामोश तसादुम के लिए भरपूर तैयारियां की और स्टेशन 4 से होटल के लिए रवाना हो गया। उसे अंदाजा था कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस होटल के रिगार्ड की तरफ मुतवज्जा होगी और उससे भी सरसरी अंदाज में गुजर जाएगी, जबकि अव्वल खान के लिए होटल का रिकॉर्ड बहुत अहम था। उसका सबब बहुत वाज़ेह था। अव्वल खान को अर्जुन के कत्ल के पूरे पस मंजर और मुहर्रिक से आगाही हासिल थी। पुलिस वाले इन बातों से बेखबर थे। इनके नज़दीक अर्जुन के कत्ल की वारदात एक आम पुरस्रार वारदात ही थी जिसमें सिर्फ एक मफरूर कातिल मुलव्विस था। वो 4:30 बजे होटल पहुंचा तो उसने दूर ही से अपने आदमी को देख लिया। वो इस वक्त होटल की लॉबी में मौजूद था। अव्वल खान उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। शाम हो रही थी लेकिन होटल की लॉबी रंगो भू की रौनक से आ रही थी। वहां हर तरफ वीरानी और अफरा तफरी का राज था। होटल की हदूद में कोई बावर्दी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। इमारत से बाहर भी अव्वल खान को इक्का दुक्का बावर्दी सिपाही और जूनियर अफसरान नजर आए। पुलिस वालों की तादाद में वो गैर मामूली कमी इस बात की गुमाजी कर रही थी कि होटल के माहौल से खौफ व हिरास की फिजा खत्म करने के लिए अर्जुन कुमार की लाश वहां से हटाई जा चुकी थी। अव्वल खान STF में होने के बावजूद आम पुलिस फोर्स के लिए एक आम शहरी था। उसे शहरी पुलिस के गिने चुने अफसरान ही बाखूबी पहचानते थे। अव्वल खान के लिए ये खुशी की बात थी कि पुलिस की नफरी में कमी के सबब उसका कोई शनासा अफसर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैनेजर की तख्ती वाले कमरे का दरवाजा बंद था। कुछ लोग वहां मौजूद और मसरूफ हो सकते थे। अव्वल खान ने होटल में 2 रातों के लिए एक कमरा लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए बुकिंग क्लर्क से वीरानी का सबब दरियाफ्त किया तो उसने एक हादसे का जिक्र करके बात टाल दी। वो कत्ल का जिक्र करके आए हुए एक गाहक को भगाना नहीं चाहता था। अर्जुन के कत्ल की वारदात के बाद उसकी आमद होटल वालों के लिए एक नेक शगुन थी। अव्वल खान को असल सानिये से बेखबर रखने के लिए बहुत ज्यादा उजलत में काउंटर से निमटा कर पोर्टर के साथ कमरे की तरफ रवाना कर दिया गया। अव्वल खान बारोब और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। वो कारोबारी अफराद के अंदाज में महज एक कुशादा ब्रीफकेस लेकर होटल पहुंचा था। उसके हाथ में झूलता हुआ ब्रीफकेस पोर्टर ने ले लिया और सीधा लिफ्ट की तरफ हो लिया। 5वीं मंजिल का कमरा उसे दिया गया था। तवील राहदारी में फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। सर पर फॉल्स सीलिंग सजी हुई थी। धीमी रोशनी में वो सुरंग नुमा राहदारी ग्राउंड फ्लोर का कशीदा माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है और रुमान आफरी महसूस हो रही थी। अव्वल खान ने पोर्टर को टिप देकर रुखसत किया और दरवाजा अंदर से मुकफ्फिल करके जूतों समेत दौरे बिस्तर पर दराज हो गया। अगर मैं निक से बात न बिगाड़ी होती तो कमोबेश इसी वक्त ऐसे ही किसी कमरे में अर्जुन मुझे कोबरा से मिलवा रहा होता, अव्वल खान ने सोचा। होटल पहुंचने तक वो अपने लिए किसी तरीका कार का इंतखाब नहीं कर सका था। पुरतकल्लुफ और आरामदेह कमरे में पहुंचने के बाद अर्जुन और कोबरा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो 5 स्टार होटल था जहां मुल्की और गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा कयाम करते थे। किसी के लिए चेहरे पर नकाब चढ़ाकर वहां आना नामुमकिन था। निक्का मोतमद नकाब पोश जो भी रहा हो, आम आदमी की तरह शरीफाना हुलिये में कोई नकाब लगाए बगैर इस होटल में आता होगा और सीधा अर्जुन से रजू करता होगा। अर्जुन ज़ाती तौर पर उसे इसकी पसंद के फ्लोर का कोई कमरा दे देता होगा। उसे यकीनी तौर पर यह इल्म रहा होगा कि वही शरीफ आदमी जरूरत पड़ने पर अपने कमरे की 4 दीवारी में चेहरे पर नकाब चढ़ाकर कोबरा का रूप धार लेता है। बाद में कोबरा का कोई मुलाकाती अर्जुन के पास आता होगा तो वो पहले इंटरकॉम पर कोबरा को किसी मुलाकाती की आमद से मुतल्ला करता होगा, फिर उसे अपने साथ लेकर मुअद्दबाना अंदाज में कोबरा के हजूर में पेश कर देता होगा।
दूसरे अल्फाज में अर्जुन कुमार को कोबरा की असलियत का पूरा इल्म था। वो इसके चेहरे से लेकर नाम पते तक सब कुछ जानता था। इसी वजह से उसे बहुत उजलत, नफासत और पेशावराना महारत के साथ ठिकाने लगा दिया गया था। कोबरा के इस करीबी राजदां को कर्नल तावर के चुंगल से बचाने के लिए बेरहमी से मरवा दिया गया था। वीरा के कौल के मुताबिक वो अमरीकियों का एक बुनियादी वसफ था। वो भेड़िया अपनी खाल बचाने के लिए अपने ही साथियों को चीर फाड़ डालते थे। पुरस्कून माहौल में ज़हनी इर्तिकाज़ के जरिए उसके दिमाग में मरबूत ख्यालात का एक सैलाब उमड़ता चला आ रहा था। सिर्फ अर्जुन कोबरा की असलियत से आगाह था। होटल के दूसरे हमले के लिए इस आदमी का कोई न कोई आम नाम और चेहरा था। वो इसे इसी हैसियत में पहचानते थे। उनको अर्जुन ने इस बात की हवा भी नहीं लगने दी होगी कि जरूरत के वक्त वही शख्स कुछ देर के लिए कोबरा बन जाता है। होटल के बुकिंग काउंटर के अमले पर मेहनत करके ये मालूम किया जा सकता था कि होटल में कभी कभी आने वाले इस खास मेहमान का नाम क्या था, जिसकी खिदमत के लिए अर्जुन हमेशा ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी लेता था। अव्वल खान समझ रहा था कि होटल की साख बचाने के लिए वर्दी पोशों की तादाद बड़ी हद तक घटा दी गई थी, लेकिन होटल में कहीं ना कहीं तफ्तीशी काम पूरे जोरों शोर से चल रहा होगा। बयानात लिए जा रहे होंगे, अर्जुन के कमरे में कैमरे चल रहे होंगे, फिंगरप्रिंट्स उठाए जा रहे होंगे। तनाव के इस माहौल में अगर वो अपनी शनाख्त जाहिर करके पूछगछ का मुतवाज़ी सिलसिला शुरू करता तो कोई मोतरज़ ना होता, लेकिन बेशतर जबीनें शिकन आलूद हो जाती। और दूसरी तरफ वो एक पुरस्रार तफ्तीशी एहलकार की हैसियत से होटल के अमले के सामने बेनकाब हो जाता। होटल में अपनी शनाख्त उसे सिरे से गवारा नहीं थी। वो एक आम आदमी की तरह होटल में रहकर अपने काम की बातें मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी रखता था। इस ज़मन में उसे होटल का रजिस्टर सबसे अहम महसूस हो रहा था, जिसमें होटल का अमला हर आने जाने वाले मेहमान के मुकम्मल क्वाइफ दर्ज करता था। कोबरा अर्जुन के लिए बहुत अहम, बल्कि शायद अहम तरीन गाहक था। उसका वक्त बहुत कीमती था। अव्वल खान का ख्याल था कि रजिस्टर में कोबरा के क्वाइफ अर्जुन खुद तहरीर करता होगा। वो इसके किसी मातहत क्लर्क की ड्यूटी थी, जिसे वो कोबरा को खुश करने के लिए अपने सर ले लेता होगा। अगर होटल का वो एक रजिस्टर किसी तरह हाथ आ जाता तो महज चंद रोज के इंदराजात देकर बहुत कुछ पता चलाया जा सकता था। इसी रजिस्टर से कोबरा की आमदोरफ्त का दुरानिया भी मालूम हो सकता था। अर्जुन पर भरोसा करके उसने इस मखसूस होटल को अपना अड्डा बनाया था। वो वहाँ के मुस्तकिल ग्राहकों में शामिल था। अमले के बहुत से लोग उसे पहचानते होंगे, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि वो होटल में हर बार नए नाम से कमरा लेता। शायद किसी मजबूरी या जरूरत के तहत कमरा बदल जाता हो। कोबरा का असल या फर्जी नाम नहीं बदल सकता था। अर्जुन की तहरीर में इस एक नाम की कई बार तकरार उसे कोबरा के बहुत करीब पहुंचा सकती थी। वो बहुत खुश हुआ कि वो अपने तौर पर भी कड़ियां मिला सकता है। उसने मोबाइल फोन पर अपने उस आदमी का नंबर मिला लिया जो होटल की लॉबी में मौजूद था। सर, मैं कुछ लोगों के साथ मसरूफ हूँ, फारिग होकर फोन करता हूँ। STF के कारिंदे ने अपने बास की आवाज़ सुनकर मुख्तसर सा जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। चंद मिनट बाद उसका फोन आ गया। उसने बताया कि वो कहीं मसरूफ नहीं था। एक ऐसी जगह था जहां वो फोन पर खुलकर बात नहीं कर सकता था। उसने बेहतर और खुले मकाम पर आकर दोबारा फोन किया था। उसने अव्वल खान को होटल में आते और फिर पोर्टर के साथ रहायशी कमरों की तरफ जाते हुए देखा था। वो हैरान था कि उसके चीफ को बजाते खुद होटल में डेरा डालने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। ये मामला संगीन है, हमें पसे पर्दा रहकर बहुत एहतियात से देखना है, अव्वल खान ने उसे समझाया। अभी तक मैं दूर दूर रहा हूँ। 2 शनासा पुलिस अफसरान मिल गए थे। वो हैरान हुए कि कत्ल की एक रूटीन वारदात में हमारी फोर्स के लिए क्या दिलचस्पी हो सकती है, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। बताया कि मैं इत्तिफाक से इधर निकल आया हूँ। मेरी मौजूदगी का फोर्स की दिलचस्पी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कमरा नंबर 520 में हूँ। इस वक्त होटल का रहायशी रजिस्टर बहुत अहम है। इस तक रसाई की क्या सूरत है? मुझे अंदाजा हो रहा है कि पुलिस को होटल के रिकॉर्ड से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो वाकयाती शहादतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। इसके आदमी की तरफ से जवाब आया, मैं रजिस्टर कुछ देर के लिए शायद हासिल कर लूं, लेकिन यह बात फैल सकती है कि STF राह में आ रही है। तुम आस पास ही रहो, मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। अव्वल खान ने बात इल्तवा में डाल दी। कुछ देर तक गौर करने के बाद अव्वल खान ने कमरे के फोन पर बराह रास्त लाइन लेकर हमारे घर का नंबर मिला लिया। दरमियान में ऑपरेटर का दखल न होने के सबब बिला तकल्लुफ बात की जा सकती थी। दरमियान में कोई भी मुखल होने की कोशिश करता तो CSD हरकत में आ जाती, जो हमारे घर पर मौजूद थी। इस वक्त तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। अर्जुन के कत्ल की खबर सुनकर मेरा जहन उलझ गया था। बस रह रहकर एक ही बात जहन में चकरा रही थी कि वो होटल इस वक्त इनकी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था। वहां से कोई ना कुछ सिरा मिल सकता था। मुझे ये जानकर बेसाख्ता खुशी हुई कि अव्वल खान हिम्मत करके खुद होटल में मुकीम हो गया था। मेरी तरह उसकी जान को भी खतरात लाहक थे। उस पर गोली चलाकर उसका बाजू जख्मी किया जा चुका था। वो भी हमारे नादीदा दुश्मनों की नजरों में आया हुआ था, लेकिन काम की खातिर उसने हर खतरे को नजरअंदाज कर दिया था।
उसने मुझे अर्जुन के कत्ल की पूरी रुदात के साथ अपने अखज़ किए हुए नताइज भी सुनाए जो बहुत मुदल्लल थे। मुझे मान लेना पड़ा कि अर्जुन के बारे में मेरा इब्तदाई अंदाज़ा गलत था। वो इस खेल का बहुत अहम मोरा था और कोबरा की असल शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ था। होटल का माहौल तुम्हें रास आया है, वहाँ बैठकर तुमने काबिल कदर बातें सोची हैं। मैंने दिलचस्पी के साथ उसकी सारी बातें सुन लेने के बाद कहा, अब तुम्हारा मसला सिर्फ ये रह गया है कि STF का नाम सामने लाए बगैर इस रजिस्टर को कैसे चेक किया जाए। हाँ, बात यहीं अटकी हुई है और मैंने इसी मशवरे के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। तुम होटल में मौजूद हो तो मैं घर में बैठकर क्या करूँगा? मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तुमने कमरा नंबर 520 ही बताया था ना? नहीं, तुम इधर आने की गलती नहीं कर सकते। वो मेरा फैसला सुनकर बुखलाई हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरात हो सकते हैं। खतरा तो तुमको भी है, तुम एक गोली खा चुके हो। मैंने कहना चाहा लेकिन उसने मेरी बात काट दी। मेरी बात और है। उसकी आजलाना आवाज़ आई, उन्होंने मुझे जख्मी करके आलाकार बनाया था ताकि मेरा पीछा करके तुम्हारा कोई सुराग हासिल कर सकें। इनके लिए मेरी इससे ज़्यादा अहमियत नहीं थी। तुम इनका असल हदफ हो और तुम तक पहुंचने के लिए सारे पापड़ बेल रहे हैं। खतरों से खौफजदा होकर हम पेशकदमियों से रुके रहते तो आज इस मकाम पर ना होते। मैं तुमको रोक नहीं रहा, बस ज़रा इंतज़ार कर लो। वक्त साजगार हो जाए तो सब कुछ तुम ही को करना है। इस वक्त तुम क्या खतरा महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। इनके आदमी होटल में मौजूद होंगे, वो हर आने जाने वाले पर नजर रखने की कोशिश कर सकते हैं। तुम गलत समत में सोच रहे हो। अर्जुन का कत्ल किसी लंबी मंसूबाबंदी या जिद्दोजहद के नतीजे में नहीं हुआ। वो चंद मिनटों में होने वाले एक फैसले के नतीजे में अचानक मारा गया है। निक और उसके भेजे हुए कातिल के सिवा किसी को इल्म नहीं हो सका होगा कि अर्जुन को किसने और क्यों मरवा दिया। अर्जुन का कातिल कोई मकामी था। उसने मानीखेज़ लहजे में कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि उसे निक ने भेजा होगा? दरमियान में राब्ते का कोई और आदमी मुलव्विस नहीं रहा होगा। कितने ही आदमी मुलव्विस हों, कत्ल का सबब निक के सिवा कोई नहीं जानता। वो मुझे अर्जुन का नाम बताकर फंस गया था। उसके पास अर्जुन के कत्ल के सिवा कोई दूसरी राह नहीं रही थी। ये बात की बातें हैं। तुम होटल में इनके किसी आदमी या आदमियों की मौजूदगी क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? अव्वल खान ने पूछा। इनके जो लोग भी होटल में हैं वो अर्जुन के कत्ल से बुरी तरह खौफजदा हो गए होंगे। वो इस वक्त अपनी कमीनगाहों में छुपे हुए होंगे। अचानक मौत का खौफ इन्हें मंजर-ए-आम पर आने से रोके रहेगा। इनके खिलाफ तेजी से काम करने के लिए यही मुनासिब तरीन वक्त है। इस वक्त तुम एक मुतज़ाद बात कह रहे हो जो करीने क़यास जरूर है, मगर तुम्हारे इब्तदाई अंदेशों से मैल नहीं खाती। मतला कुछ साफ होने तक वो बाहर निकल सकते हैं, ना होटल तब्दील कर सकते हैं। हम इस मोहलत से फ़ायदा उठाना होगा। फिर तुम कितनी देर में आ रहे हो? अव्वल खान ने कायल होकर हथियार डाल दिए। मैं बस अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। तेजी से बदलते हुए हालात के तहत हमारे फैसले भी बदल रहे थे। आसारो क्राइन से कुछ यूं जाहिर हो रहा था जैसे जल्द ही कुछ न कुछ होने वाला था। मैं खुले मैदान में मुकाबले के लिए नहीं जा रहा था। होटल की बंद चार दीवारी में साजियों और मक्कारों से मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा था। होटल के कमरों और राहदारियों में आतिशी हथियारों से कहीं ज्यादा मोहलक और खामोश अरबों की जरूरत थी। इस बार मैं बीमगन घर पर भूलने की गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुझे रवानगी की तैयारी में मसरूफ पाकर तीनों का तजस्सुस जाग उठा। मेरे इरादे पर किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो फिक्रमंद थे। इनके लिए वो दलीलें भी काफी नहीं थीं जिन्होंने अव्वल खान को खामोश कर दिया था। शायद उसका सबब यह था कि अव्वल खान मुजरिमों के एक मुतवक्का मस्कन में विराजमान था। वो तीनों घर में थे। मैंने STF के इब्रार नामी कारिंदे को चाय बनाने की हदायत की और फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। सदफ मेंशन जलाल के मसरूफियात का मरकज और महवर जरूर था, लेकिन वो हर वक्त वहां नहीं पाया जाता था। मोबाइल फोन पर उससे फौरी राब्ता हो गया। तुम सही कह रहे थे, एक 5 स्टार होटल में दिन दहाड़े दीदा दलेरी से घुसकर मैनेजर को माल डालना दिल गुर्दे का काम है।